Greetings to all. So this is our next part of the aquifer lecture. In the previous lecture we have seen the aquifer and the types of aquifer, and today's lecture we will going to discuss about the other types of aquifer, and in this lecture we will also discuss about the water table contour maps and the source of groundwater. So let's start with today's topic of aquifers. So as we have discussed about the aquifer in the previous lecture, that is aquifer is the natural storage of groundwater in the earth's surface, and we have two main type of aquifer, that is confined aquifer and unconfined aquifer. And we have also other different types of aquifer on the basis of their lithology and the formation of the rock. So those aquifers are aquiclude, aquitard, and aquifuge. So what are aquicludes? Aquiclude aquifer are those aquifer which contain the clay material. So these aquifer is known as the aquiclude. Aquifuge are those aquifer which contain the granitic composition or which contain the igneous rock composition. So this is called the aquifuge. And if you're talking about the aquitard aquifer, so aquitard aquifer which contain the sandy material or sandy particles. So on the basis of the lithology we have three other type of aquifer, but we have two main type of aquifers, that is confined aquifer and unconfined aquifer. So we have know that is what is confined aquifer and what is unconfined aquifer. Confined aquifer are those aquifer which is present below the earth's surface and which is sandwiched between the two aquiclude layers. One aquiclude layer is above the confined aquifer and another aquiclude layer is below the confined aquifer. So confined aquifer is the sandwich between the two aquiclude layer, and we know what is aquicludes. Aquiclude is the clay material or clay formation aquifer which have the porosity but it doesn't contain permeability. Okay, or we will also discuss about the aquifer properties, that is porosity and permeability. So what is porosity and permeability? So porosity is nothing but the ability to hold or to store the water in the rock formation, and permeability is the ability to transmit the water from one aquifer to the another aquifer. So this is known as the permeability. So the porosity and permeability is the properties of aquifer, which is very important. So it is also it is always depend on the lithological factor of the rock formation. So we will see the another type of aquifer. So this is the purge water table, or we also we can say that this the purged aquifer. So purged aquifer or purged water table are those aquifer which present at some places which contain the impermeous bed, or those impermeous bed are the aquicludes, and we know aquicludes are the best porosity, have the best porosity, but it doesn't contain any permeability. So it is impermeable rock formation or impermeable rock layer. So this is known as the aquiclude. So purged water table or purged aquifer are those aquifer which is present some localities which contain the aquiclude rock formation, and which is in the form of the lens shaped bed of clay. So it is basically it is in the form of lens shaped. Okay, and occur in a permeable rock formation above the main water table. So it is present above the main water table. So we have also discussed the water table. Water table is the above or imaginary line or level where the water saturation is started below the earth surface. So this is the water table, and the purged water table is those water table which occur in the permeable rock formation above the main water table. So this is the purged water table. And an isolated body of groundwater may occur above these impermeable layer in the zone of aeration. So this is the isolated body of groundwater or the water which is present occur above the zone of aeration. So we have already discussed the uh,
occurrence of groundwater, and in the occurrence of groundwater we have seen there are two main type of zone, that is zone of aeration and zone of saturation. So zone of saturation is below the earth surface, and zone of aeration is in the atmospheric pressure, and zone of aeration contain three layers, and zone of aeration contain the saturated zone where the quantity or the majority of water is more as compared to the zone of aeration, and such groundwater is called the purged water table. So पर्च वाटर टेबल एक लोकल इम्परमियस बेड है जिसको हम एक्विक्लूड भी बोलते हैं। और एक्विक्लूड क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। एक्विक्लूड मतलब एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन जो क्ले मटेरियल का बना हो, और क्ले मटेरियल का बना होने के साथ ये इम्परमियस होता है, मतलब इसमें पोरोसिटी तो होती है बट ये इम्परमियस होता है क्योंकि इसमें परमेबिलिटी नहीं होती। और पोरोसिटी क्या है और परमेबिलिटी क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। पोरोसिटी मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो वाटर को स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पोर्स ऑफ द रॉक फॉर्मेशन और रॉक। और परमेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर को ट्रांसमिट करती है। तो एक्विक्लूड एक ऐसी क्ले फॉर्मेशन है जो वाटर को होल्ड करके रख सकता है बट ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो पर्च वाटर टेबल और पर्च एक्वीफर एक ऐसा एक्वीफर है जो वहाँ मिलता है हमें जहाँ पे एक्विक्लूड का फॉर्मेशन हो इन दी लेंस शेप्ड का एक्विक्लूड का फॉर्मेशन होता है। और ये एक ऐसा वाटर टेबल है जो हमको अब जो हमारा मेन वाटर टेबल है उसके ऊपर मिलता है, और उसको हम बोलते हैं पर्च वाटर टेबल। और जो लेंस शेप का जो रॉक फॉर्मेशन होता है और जहाँ वहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होता है उस पर्टिकुलर स्टोरेज को हम बोलते हैं पर्च्ड एक्वीफर। ठीक है। और ये एक आइसोलेटेड बॉडी होती है ग्राउंड वाटर की जो कि हमें जोन ऑफ एरेशन के ऊपर देखने के लिए मिलती है। और सच ग्राउंड वाटर इज़ नोन एज दी पर्च वाटर टेबल। तो हम इसको पर्च वाटर टेबल भी बोल सकते हैं और पर्च्ड एक्वीफर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ एक्वीफर जिसे हम बोलते हैं पर्च्ड एक्वीफर, और इसके वाटर टेबल को हम बोलते हैं पर्च वाटर एक्वीफर, पर्च वाटर टेबल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। Now source of groundwater. So in the previous lecture we have seen the hydrological cycle. So we have seen there are so many processes by which the hydrological cycle go through. Now we have three types of water, that is meteoric water, coned water and juvenile water. सो अब हमें ये देखना है कि ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है और किस टाइप के वाटर हमको एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के वाटर है, meteoric water, coned water और juvenile water. Meteoric water are those water which is found under the ground surface and which is derived from the rain or the snow. सो मेटेरिक वाटर एक ऐसा वाटर है जो हमको अर्थ सरफेस के नीचे मिलता है, जो अर्थ सरफेस के नीचे स्टोर होता है, जो हमें मिलता है रेनफॉल से या स्नो से। सो उसको हम बोलते हैं मेटेरिक वाटर। नाउ कोनेड वाटर। सो व्हाट इज़ कोनेड वाटर? सो कोनेड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो सेडिमेंट्री रॉक में ट्रैप्ड हो जाता है ड्यूरिंग देयर डिपोजिशन, और दिस टाइप के वाटर को हम बोलते हैं कोनेड वाटर। सो कोनेड वाटर आर दोज वाटर विच इज ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट्री रॉक ड्यूरिंग देयर डिपोजिशन। सो इसको बोलते हैं कोनेड वाटर। एंड द लास्ट वाटर इज जुवेनाइल वाटर। सो जुवेनाइल वाटर इज ऑल्सो नोन एज द मैग्मेटिक वाटर and the water is produced directly by the igneous activity. So juvenile water को हम magmatic water भी बोलते हैं, और ये जो water है ये डायरेक्टली हमको igneous activity से मिलता है during the formation of the during the eruption of the volcanism. So जैसी ये igneous activity होती है, so जब volcanism होता है तो जो in the form of steam होता है, वही जो steam है in the form of water or vapors एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन द अर्थ सरफेस, और उस टाइप के वाटर को हम बोलते हैं जुवेनाइल वाटर। सो दोज वाटर विच इज़ प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द इग्नियस एक्टिविटी ड्यूरिंग द वॉल्केनिज्म, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल वाटर। सो ये थ्री मेन सोर्स है हमारे ग्राउंड वाटर के, और ये थ्री मेन सोर्स के थ्रू हमको ग्राउंड वाटर मिलता है। और देयर आर सो मैनी अदर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, बट दीज आर दी थ्री मेन बेसिक सोर्स फॉर द formation of the groundwater. So we have meteoric water which is
derived from the rain or snow which is present in under the ground surface. We have connate water which is formed or which is trapped in the sedimentary rock during their deposition. And we have juvenile water which is also known as the magmatic water and which is directly produced by the igneous activity during the volcanism. So this is called the juvenile water. So these three are the main source of groundwater. So this is very important. So ये आपको वाइवा में भी पूछ सकता है, ये आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट में भी पूछ सकता है, एंड ये आपको एज अ जनरल नॉलेज भी क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पूछ सकता है. ठीक है. सो दीज आर थ्री मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर: म्यूटेरिक वाटर, कोनाइड वाटर एंड जुवेनाइल वाटर. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. म्यूटेरिक वाटर मतलब ऐसा वाटर जो हमको रेन और स्नो से मिलता है, जो अंडर द अर्थ सरफेस स्टोर हो जाता है. कोनाइड वाटर ऐसा वाटर जो हमको सेडिमेंट्री रॉक में ट्रैप्ड मिलता है विद इन द पोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, उसको बोलते हैं हम कोनाइड वाटर. एंड जुवेनाइल वाटर एक ऐसा वाटर है जिसको हम मैग्मेटिक वाटर भी बोलते हैं और जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है हमारी इग्नियस एक्टिविटी से, और उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल वाटर. ठीक है. सो दीज आर द थ्री मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर: म्यूटेरिक वाटर, कोनाइड वाटर एंड जुवेनाइल वाटर. सो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर स्टडीज़ इन सिविल इंजीनियरिंग. सो हमने ग्राउंड वाटर देख लिया है, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर देखा है, हमने एक्वीफर देखा है. ठीक है. अब हमें उसकी इम्पोर्टेंस को देखना है कि एज अ सिविल इंजीनियर ग्राउंड वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. वैसे तो हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर इज़ अ मेन सोर्स फॉर द लाइफ, फॉर आर सर्वाइव. ठीक है. विदाउट वाटर हम नहीं जी सकते. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. सो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर तो बहुत सारे हैं, बट हमें देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर एज अ सिविल इंजीनियर क्यों है, हम ग्राउंड वाटर को स्टडी क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो देर आर सो मैनी रीज़न टू स्टडी द ग्राउंड वाटर एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव. So we have some few points. So basically the first and important point, what are the main importance of groundwater studies in civil engineering. So first is and very important, that is dam construction. सो डैम कंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हमको ग्राउंड वाटर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है. हम क्यों स्टडी कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का? बिकॉज वी हैव टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, वी हैव टू नो अबाउट द how groundwater is stored, and we have to know about the drainage system, we have to know about the drainage basin or watershed. So these are all basic terms which you have to know about this. So जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, so as a civil engineer you have to know the all parameters of particular locations. आपको वहाँ की लिथोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको उस एरिया का स्ट्रक्चर, एलिवेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उस एरिया में किस टाइप के रॉक फॉर्मेशन मिल रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्राउंड वाटर. अगर आप वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको किस टाइप का ग्राउंड वाटर वहाँ पे मिलता है, उसका फ़्लो कैसा है, कितने लेवल पे आपको वाटर मिल रहा है. जैसे कि अगर हम कोई एरिया में डगवेल करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस एरिया का लेवल क्या है वाटर का. जस्ट बिकॉज डगवेल करना है तो हम सीधे डायरेक्टली खोदना शुरू नहीं करते. हम पहले विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल एक प्रोफाइल बनता है, एक वाटर मैप बनता है, उसकी हेल्प से हम उस एरिया का स्टोरेज कैपेसिटी आइडेंटिफाई करते हैं, उस एरिया का वाटर लेवल किस लेवल पे हमको मिल सकता है वो आइडेंटिफाई करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया में डगवेल को डग करते हैं. सो वैसे ही जब हम डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें उस एरिया की लिथोलॉजी पता होनी चाहिए. सो उस एरिया में किस टाइप के रॉक है और हमारा डैम कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ information about to know what type of lithology the area is covered with and what type the water flow beneath the earth surface. So
जैसा कि मैंने बताया कि सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसे रॉक है जो जिसमें हमको पोरोसिटी और परमेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। सो जब भी कोई डैम कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पे हम सेडिमेंट्री रॉक को यूज़ करते हैं, और अगर वहाँ पे पहले से ही सेडिमेंट्री रॉक हो गए तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू दी डैम, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसे रॉक है जिसमें हमको पोरोसिटी और परमेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, जो वाटर को स्टोर भी करके रख सकते हैं और वाटर को ट्रांसमिट भी करके रख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम जब डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम सेडिमेंट्री रॉक का यूज़ करते हैं, ताकि उस डैम का जो सेफ साइड है वो इजीली हो पाए, और डैम थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट अच्छे से मेंटेन वाटर लेवल को मेंटेन करके रख सके। सो एज अ डैम कंस्ट्रक्शन हमें ग्राउंड वाटर की स्टडी को अच्छे से एग्जामिन करना आना चाहिए, बिकॉज बिफोर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द डैम वी हैव टू नो ऑल दिस पैरामीटर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन। रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर आई हैव टोल्ड यू, रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर है और एक्वीफर एक नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर है जो टेम्प्रोरी भी हम बना सकते हैं, टेम्प्रोरी भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या परमानेंटली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एरिया में हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई भी माइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम थ्रू आउट दी वाटर हम थोड़े टाइम के लिए पानी वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर। सो उस तरीके से हम ऐसे टाइम पे, ऐसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि टेम्प्रेरी होता है। और अगर हमें आर्टिफिशियल थ्रू आउट दी ईयर या परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना है रिजर्वायर का, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। और अगर हमें परमानेंट कंस्ट्रक्शन देखना है रिजर्वायर के, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमें राजस्थान में बहुत सारे परमानेंट रिजर्वायर देखने के लिए मिल सकते हैं जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया है। सो रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल एक्वीफर होता है, और जो एक्वीफर होता है वो परमानेंट एक्वीफर होता है, नेचुरल एक्वीफर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, सो रिजर्वायर बनाते टाइम भी हमें सेडिमेंट्री रॉक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसे रॉक है जो वाटर को होल्ड भी करके रख सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो जब रिजर्वायर हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें सेडिमेंट्री रॉक का यूज़ करते हैं, तो एज अ फर्स्ट लेयर और बेस लेयर हम सेडिमेंट्री रॉक यूज़ करते हैं, ताकि अगर वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है अगर उस रिजर्वायर से होकर गुजरे तो वो वाटर को और उसका लेवल मेंटेन करके रखें। सो दीज आर और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी ग्राउंड वाटर। सो हमने डैम कंस्ट्रक्शन देख लिया, रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन देख लिया। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दी टनल प्रोजेक्ट्स। सो टनल प्रोजेक्ट्स भी डैम और रिजर्वायर की तरह इम्पॉर्टेंट है, और टनल प्रोजेक्ट्स के टाइम पे हमें ग्राउंड वाटर फ्लो का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। अगर कोई एरिया में आप टनल्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या टनल प्रोजेक्ट आप डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको ग्राउंड वाटर फ्लो पता होना चाहिए। टनल कोई भी चीज़ का हो सकता है, या तो रेलवे टनल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई टनल हो सकता है, या कोई भी टनल हो सकता है। तो अगर वहाँ पर ग्राउंड वाटर का फ्लो है और सरफेस के नीचे, तो आपका टनल डैमेज हो सकता है इन फ्यूचर। तो आपको ड्यू टू दी लिथोलॉजी आपको ये एग्जामिन करते आना चाहिए कि उस एरिया में वाटर है, या अगर कहीं आसपास में रिवर है या डैम है या फिर छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम है, तो इन फ्यूचर उस टनल को क्या डैमेज हो सकता है। सो इस टाइम पे हमें ग्राउंड वाटर की स्टडी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि अगर हम कोई एरिया में टनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टनल कास्ट कर रहे हैं, तो उस एरिया का ग्राउंड फ्लो क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है। इन फ्यूचर अगर हम टनल बनाते हैं तो विद दी ड्यू टू दी ग्राउंड वाटर हमको क्या डैमेज हो सकता है, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर, बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लो। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। सो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो एज अ रिजर्वायर। तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वो परमानेंट होता है, और वहाँ पे भी हमें ग्राउंड वाटर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज विदाउट नॉलेज हम कोई भी एरिया में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते।
सो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में हमारे डैम भी आ सकते हैं, रिजर्वायर भी आ सकते हैं, छोटा सा लिटिल लेक या पॉन्ड भी आ सकता है जो आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए यूज़ होता है। सो आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ वाटर भी हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। और ये भी जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स है ये भी आपको राजस्थान वाले एरिया में देखने के लिए ज़्यादा मिल सकते हैं, बिकॉज वो लोग वाटर सप्लाई या रिजर्वायर या आर्टिफिशियल रिचार्ज के थ्रू ही वाटर थ्रू आउट द ईयर वाटर गेन करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो आपको उस एरिया का नॉलेज होना चाहिए, वाटर लेवल पता होना चाहिए। और अगर आपको ग्राउंड फ्लो नहीं पता है तो आप कोई भी रैंडम एरिया में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक बंजर ज़मीन है तो वहाँ हम खेती नहीं कर सकते। वैसे ही सेम है कि अगर एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ही डीप डाउन है तो वहाँ हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स या डैम या रिजर्वायर ये नहीं बना सकते। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, कि कितने लेवल पे हमको इस एरिया में पानी मिल रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि थ्रू आउट द रॉक फॉर्मेशन, थ्रू आउट द अर्थ हमको एक ही लेवल पे वाटर नहीं मिलता है। हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इतवारी में डग कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर मिलेगा, या फिर हम थोड़े दूर अगर जाते हैं, सदर जाते हैं, बर्डी जाते हैं, अगर वहाँ हम डग कर रहे हैं तो वहाँ का लेवल कुछ अलग होगा। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी। जिस जगह पे जिस टाइप की लिथोलॉजी रहेगी, जिस जगह पे जिस टाइप का सेचुरेशन रहेगा, वहाँ पे हमें उस टाइप के उस लेवल पे वाटर मिल सकता है। ठीक है, सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द लिथोलॉजी ऑफ द रॉक फॉर्मेशन। सो वाटर लेवल कभी भी सेम नहीं होता। अगर कहीं पे कभी 19 फीट पे पानी लग रहा है तो कभी 20 फीट पे लग सकता है, कभी 15 फीट पे लग सकता है। सो इट इज़ डिपेंड ऑन दी एरिया वाइज। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा अंडरग्राउंड पावर हाउस प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरग्राउंड पावर हाउस प्रोजेक्ट में हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी आता है, तो उस टाइम उस प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ग्राउंड वाटर के बारे में नॉलेज। क्योंकि अगर आप पावर हाउस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको उस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम देखना ज़रूरी है, ग्राउंड वाटर फ्लो देखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो बात है तो वहाँ पे आपको पता है, अगर वहाँ पे हमने कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई की टनल बनाया है या फिर पावर हाउस बनाया है और वहाँ पे ग्राउंड वाटर का स्टोरेज है या कुछ भी ऐसे पॉन्ड्स है या ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर बेसिन है या स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है, सो इट विल बी वेरी वेरी बैड एज फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्योंकि कुछ भी डैमेज हो सकता है, जान जा सकती है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है जब हम बनाते हैं या शुरू करते हैं तो हमें उस एरिया में ग्राउंड वाटर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। सो एज अ सिविल इंजीनियरिंग और एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। सो इसीलिए हम ग्राउंड वाटर की स्टडी कर रहे हैं या करते हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर हम ऐसे कुछ भी प्लान्स कंस्ट्रक्ट करें, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करें, तो हमें इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो कि हम उस एरिया में कंस्ट्रक्ट करने से पहले वहाँ की लिथोलॉजी, वहाँ का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर फ्लो किस टाइप का है, कैसा है, ये हमें पता होना चाहिए। सो ये 5 मेन पॉइंट्स है। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आप ये आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपको एग्ज़ाम में आएगा ही, और एज अ वाइवा में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल सेशन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये जो पॉइंट्स है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर studies in civil engineering. We have seen the dam construction, reservoir construction, tunnel projects, water supply projects, and underground powerhouse projects, and etc. So this is all about the second part of the aquifer. So that's it. This is the end of the lecture. We have completed our second part of the aquifer, and in the previous lecture we have discussed the all type of aquifers, and today we have completed the second part of aquifer, in which we have discussed the Perst aquifer,
source of groundwater, in which we will see the three main types of water, that is meteoric water, conad water and juvenile water. Meteoric water are those water which is directly produced or directly formed with the help of rainfall or the snow underground water. And conad water are those water which is trapped in the sedimentary rock during their deposition. And juvenile water are those water which is uh, directly produced by the igneous activity during the volcanism. It is also known as the magmatic water. And last is the, we have seen importance of groundwater study in the civil engineering, so in which we have seen the dam construction, reservoir projects, tunnel projects, water supply projects and underground powerhouse projects. So these are very important topic. It is very scoring topic to score the maximum marks, so please don't take it lightly. Or we have completed uh, our aquifer lecture here. We will start the another topic in the next video lecture. So if you have any queries or doubt, you can ask in the comment section. And stay safe, stay healthy. Thank you.